ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر شامل کریں۔ محکمہ بلدیات نے ترقیاں پانے والے افسران کی اہم عہدوں پر تعیناتیاں، اسسٹنٹ کمشنر ملیر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا۔ محکمہ سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات لیں گے آزاد نہوڑیوں سے۔ بتائیے گا کس کس کا تبادلہ ہوا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے محکمہ سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے دو الگ الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن محکمہ بلدیات کے افسران جن کو ترقیاں پانے والے تھے ان کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دینے کے بعد میں اہم عہدوں پر تعیناتیاں کر دی گئی ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے تحت علی انور رخ کو جو ریجنل ڈائریکٹر بلدیات سکھر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ نور الدین میمن کو ایڈیشنل ڈائریکٹر بلدیات ٹنڈو والایار تعینات کیا گیا ہے۔ محمد شریف چندرانی کو ریجنل ڈائریکٹر بلدیات شہید بینظیر آباد، میاں محمد گاؤں کو ریجنل ڈائریکٹر بلدیات میرپورخاص، جبکہ شمس میمن کو ریجنل ڈائریکٹر بلدیات لاڑکانہ تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انیس احمد کو جو اسسٹنٹ کمشنر ملیر کراچی تعینات کر دیا گیا، وہاں سے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر ملیر کراچی وقاص ملک کا جو تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے آزاد، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سندھ حکومت نے مزارات کے اندر خادمین کے کھڑے ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ صوبائی وزیر ریاض حسین شاہ شرازی کی ہدایت پر محکمہ اوقاف نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آزاد نہوڑیوں سے تفصیلات لیں گے، اس پر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے محکمہ اوقاف کے ماتحت تمام جو مزارات ہیں ان کے اندر خادمین کے کھڑے ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی صوبائی وزیر اوقاف سید ریاض حسین شاہ شرازی کی ہدایت پر عائد کر دی گئی۔ اس حوالے سے محکمہ اوقاف سندھ نے صوبائی وزیر کے حکم پر جو باضابطہ طور پر تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمہ اوقاف کے حکم نامے کے مطابق تمام خادمین کو جو ہے درگاہوں کے اندر قبروں کے پاس کھڑے ہونے پر پابندی عائد کی گئی، جبکہ کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر رقم جمع کرتا ہوا پایا گیا ہے اس کے خلاف بھی سخت تعزیری کارروائی عمل میں لانے کا بھی احکامات جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سختی سے جو ہے محکمہ اوقاف سندھ نے حکم نامہ جاری کر کے تمام جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ صوبائی وزیر کے احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، کسی کی مزار کے اندر خادمین جو ہے وہ نظر نہ آئیں۔ جی کسی بھی مزار کے اندر خادمین نظر نہ آئیں۔ آزاد، یہ ایک بہت پرانا رواج ہے، برسوں سے اشروں سے چلا آ رہا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا حکومت کی طرف سے؟ جی بالکل، یہ مزارات تمام صوبے بھر کے معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ فیصلہ جو کیا گیا ہے یہ وہ مزارات ہیں جو محکمہ اوقاف کے ماتحت ہے، جہاں پر شکایتیں موصول ہوتی ہے کہ جو زائرین ہیں زیارت کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان سے جو خادمین کھڑے ہوتے ہیں وہ جو کئی افراد جو خیرات کے طور پر پیسے جو ہے بکسے کے اندر ڈال دیتے ہیں، لیکن کئی ایسے افراد جو کئی دیہات کے علاقوں سے آتے ہیں یا شہری علاقوں، لیکن وہ جو بکسے پر جو رش ہوتا ہے جس کے بعد وہ خادمین کو پیسے دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن خادمین جو ہے وہ رقم اس بکسے میں جمع کرنے کے بجائے اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ شکایت عام موصول ہوئی تھی صوبائی وزیر کو، جس کے بعد جو حالیہ عبداللہ شاہ کا جو عرس تھا اس موقع پر صوبائی وزیر نے اس مزار کا دورہ کیا تھا، وہاں پر اپنے آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی تھی، جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تمام محکمہ اوقاف کے افسران کو اعتماد میں لے کر کے یہ سلسلہ رکنا چاہیے، کیونکہ یہ جو خیرات کے نام پر پیسے ملتے ہیں وہ خادمین اپنے جیب میں ڈال دیتے ہیں، لیکن مزارت پر جو ہے بکسوں میں جمع نہیں کیے جاتے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کے عمل کو اب جو ہے روکا جائے، جس کے بعد جو آج محکمہ اوقاف نے ایسا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اچھا آزاد، جس طرح آپ نے کہا کہ جو محکمہ اوقاف کے انڈر آتے ہیں مزارات ان پر یہ پابندی ہے، تو کیا دوسرے مزارات پر نہیں ہوگی خادمین کے کھڑے ہونے پر؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ کون سے ایسے مزارات ہیں جو محکمہ اوقاف کے انڈر آ رہے ہیں اور کون سے نہیں آتے؟ جی بالکل، جو سندھ میں خاص طور پر بڑے مزارات ہیں جس میں عبداللہ شاہ غازی، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، قلندر لال شہباز، سکل سرمسد، سمن سرکار سمیت 36 سے زائد ایسی مزارات ہیں جو محکمہ اوقاف کے ماتحت ہیں، جس حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ وہاں پر محکمہ اوقاف کے جو خادمین ہیں ان کو شکایتیں موصول ہوئی، ان کے حوالے سے شکایتیں موصول ہوئی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بڑے مزارات کے ساتھ ساتھ جو محکمہ اوقاف کے ماتحت 36 سے زائد ایسی مزارات ہیں اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا باقی مزارات کے حوالے سے، کیونکہ کئی ایسی مزارات ہیں ان کے گدی نشین بھی ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے گدی نشین کی جانب سے ان کا ذاتی حیثیت سے اسٹاف بھی موجود ہے، ان کی تنخواہیں بھی گدی نشین کرتے ہیں، اس حوالے سے گدی نشین اس پر فیصلہ کریں گے جو مختلف مزارات کے جو روایتی پیشوا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ محکمہ اوقاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کے عمل کو جو اب روکا جائے تاکہ خادمین جو رقم لوگوں سے حاصل کر کے بکسے جمع نہیں کرتے ہیں وہ اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں، اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا اس سلسلے کو اب روکا جائے تاکہ پیسوں کا جو ہے غلط استعمال نہ ہو، اور جو وزارت کے اندر جو ایسا تاثر کیا جاتا ہے یا بے روپی کا جو اس طرح کا عمل جو ہوتا ہے یا رویہ ہوتا ہے اس کو
संदूक में रोकने के लिए पहला फैसला किया, लेकिन अब इस पर अमल दरामद करना बाकी है। किस तरह अमल दरामद होगा, क्योंकि ये एक किस्म की भागशात है जिसमें न सिर्फ खादिमीन शामिल है, इसके साथ साथ बड़े सतह के अफसरान भी उसमें मदद पाए गए हैं। इस हवाले से कलंदर लाल शहबाज की वजारत के हवाले से भी शिकायत मौसूल होती है, जिसके पर जो हालात तहकीकाती कमेटी का तहकीकाती कमेटी ने इस पूरे मामले की। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट की। कार्डियो अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर का अच्छा इक़दाम। अस्पताल के 4000 से ज़ायद मुलाजमीन को माहाना तनख्वाह जितना बोनस देने का ऐलान कर दिया। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम है। मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब। इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर ताहिर सगीर, जिनका कहना है कि हुकूमत सिंध ने उनको अस्पताल को मजीद ग्रांट दी है, क्योंकि मरीजों की तादाद को काफ़ी इजाफा हो, जिसके पेश नज़र तमाम मुलाजमीन ने दिन भर दिल के आने वाले मरीजों की खिदमत की, जिसके पेश नज़र वो ऐलान करते हैं कि अपने जो 4000 मुलाजमीन हैं उनको एडवांस जो है एक माह के जितनी तनख्वाह है उतना उनको बोनस देने का ऐलान किया, जिस पर तमाम मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया और मजीद दिल लगा के काम करने का भी इरादा जाहिर किया। जबकि प्रोफेसर ताहिर सगीर का कहना था कि ग्रुप इंश्योरेंस भी तमाम मुलाजमीन की कराई जाएगी, जिसमें उनकी अहलिया, उनके बच्चे और उनके वालिद और वालदा भी समेत उनकी भी इंश्योरेंस होगी, ताकि तमाम अफराद को जो मुलाजमीन उनको भी बेहतर इलाज मिल सके, जिस पर तमाम मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया, मजीद बेहतर अंदाज में मरीजों की खिदमत करने का भी वादा किया है। जी ये बताइएगा इब्राहिम के 4000 से ज़ायद मुलाजमीन का आ रहा है कि उनको बोनस दिया जा रहा है, ये मुकम्मल मुलाजमीन हैं या मुलाजमीन इससे ज़्यादा हैं? जी तकरीबन जो तादाद बताई गई है अस्पताल की इंतजामिया से, ये तमाम ही मुलाजमीन है जो कि कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब, जो कि कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है मुल्क का, इसके तमाम मुलाजमीन जो है जितने भी हैं तकरीबन 4000 बताए जा रहे हैं, उन तमाम को ये बोनस देने का ऐलान किया गया है। और जो जितने भी मुलाजमीन हैं जिसपे तमाम मुलाजमीन ने खुशी का भी इजहार किया है और मजीद बेहतर अंदाज में काम करने का भी वादा किया है। ठीक है इब्राहिम, अभी आप हमारे साथ रहिए। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई। अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर, पीपल्स पार्टी की MPA सादिया जावेद, कादिर खान मंदोखेल समेत दीगर ने केक काटा। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं दिल की बीमारियों के सबसे बड़े अदारे कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में, जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया, जहाँ पर MPA साहबा सादिया और डायरेक्टर जो हैं ताहिर सगीर समेत दीगर जो है यहाँ पे अहदेदार भी मौजूद है, जबकि आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के अहदेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और आज सालगिरह के हवाले से बात करेंगे। आफ्ताब चांडियो साहब, बात आइएगा कि क्या कहेंगे आज सालगिरह के हवाले से? जी, ये हर साल हम जो है तजदीद अहद वफ़ा के तौर पर अपनी मोहतरमा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम ये सालगिरह का इनेकाद करते हैं। मुख्तलिफ़ यूनिट्स के अंदर जितने भी कराची के यूनिट्स हैं हमारे, उसमें हम इसका जो है इस बर्थडे को जो है सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ साथ कराची डिवीज़न के सदर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताएं कि दिल के अस्पताल में सालगिरह का केक काटा जा रहा है, दिल के मामला बढ़े और मुलाजमीन के लिए क्या कहेंगे, क्या मसाइल हैं उनके लिए भी हल के लिए कोशिश करेंगे। ये NICVD जो है इसका समर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साहब के ऊपर जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सिंध के नहीं पूरी पाकिस्तान के जो लोग होते हैं ना NICVD में सेहतयाब होते हैं और इनके यूनिट्स अब पूरे सिंध में फैल चुके हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि आज जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर ने, उन्होंने मुलाजमीन के लिए भी आज बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें मुलाजमीन का बोनस, इंश्योरेंस और दीगर भी मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर बातचीत की गई, जिस पर मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया है। जी, शहरी खबरदार हो जाएं, पेट्रोल का बहरान आने को है तैयार। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं वफाकी बजट में एडवांस इनकम टैक्स आशारिया 50 को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर डाला। अब्दुल समी खान बोले टैक्स वापस लेने तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। डीलर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। आवाम को पेट्रोल के बहरान का मिल गया पैगाम। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स लगा दिए गए। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वफाकी बजट में एडवांस इनकम टैक्स 0.50% आयद करने को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल समी खान ने साफ कहा है कि 5 जुलाई सुबह 6 बजे से मुल्क भर के 13,000 से जायद पेट्रोल पंप्स गैर मुइना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। हमने
हमने तो डीलरों से कहा है कि आप 4 तारीख तक का पेट्रोल भर लें, उसके बाद 5 को भी फिर देखते हैं क्या है, शायद गर्मी के समझ में आ जाए, वरना हम हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल के हवाले से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। साफ कहा है कि इस टैक्स के बाद हम अपना कारोबार नहीं चला सकेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। पेट्रोल का बहरान तैयार है आने को। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं वफाकी बजट में एडवांस इनकम टैक्स 50% को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से टैक्स को वापस लेने का मुतालबा भी किया है। अब्दुल समी खान ने कहा है कि टैक्स वापस लेने तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। एक बड़ी खबर है, महंगाई के मारे अवाम के लिए अब जहनी अजियत के लिए भी तैयार हो जाएं। कल से पेट्रोल पंप्स बंद होने जा रहे हैं। अब ये पेट्रोल पंप से कितनी देर बंद रहते हैं इस पर कोई डिटेल सामने नहीं आई है। आया कि ये भी कहा जा रहा है 1 दिन से ज़्यादा भी पेट्रोल पंप्स बंद रह सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि रोज़ाना लाखों लीटर पेट्रोल की खपत शहर कायद में है। अब ये पेट्रोल किस तरीके से पूरा किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कॉमर्स के मामलात हैं। ख़ास तौर पे अगर हम एमरजेंसी के हवाले से देखें तो एम्बुलेंसेस रोज़ाना पेट्रोल डलवाती हैं, साथ साथ अगर ऑनलाइन राइडर्स हैं, बहुत सारे मामलात जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए सारी इकॉनमी की तकरीबन पेट्रोल से जुड़ी हुई है। अगर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे तो एक तरीके से ये कहा जाए कि शहर कायद का पहिया रुक जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। पेट्रोल का बहरान तैयार है आने को। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खान साहब ये बताइएगा, कल से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है, पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात क्या हैं? देखिए, इन्होंने टैक्स लगा दिया टर्नओवर 0.5%, जो करोड़ों में साल में चला जाएगा। हमारे तो वैसे हम रो रहे थे कमीशन के लिए और सब अखराजात बढ़ गए, तो हम कैसे दे सकते हैं ना। हमसे हमेशा से हमसे कंसल्ट करते थे, कोई बजट से पहले हमसे कोई बात ही नहीं करी इन्होंने। और या तो ये चाहते हैं कि पंप ही खत्म हो जाए, या ये चाहते हैं कि स्मगल प्रोडक्ट आ जाए और ये पंप वो 70 रुपए कम पे वहां से मंगा लें और वो बेचते रहें। या ये हो सकता है, क्या इनकी ख्याल है, क्या आइडिया है, मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं। अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि पेट्रोलियम जो एसोसिएशन है उनके मुतालबात तो काफ़ी हद तक क्लियर भी हैं। ये बताइएगा कि अगर उन मुतालबात आपके नहीं होते मंजूर तो कब तक बंद की जा सकती है, कब तक हड़ताल जो है वो जारी रह सकती है? कल 12 बजे आप बताएंगे तो मैं और क्लियर हो जाऊंगा। मुमकिन है कल कोई डिसीजन ले ले, तो अभी मैं इतनी जल्दी नहीं है। कल तो बंद है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। तो 12-1 बजे मालूम करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात जी। अच्छा खान साहब, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात भी है। बहुत सारे मामलात हैं जो पेट्रोल के साथ जुड़े हैं। एम्बुलेंसेज हैं, आपको पता है सारा दिन सड़कों पर दौड़ती हैं, कई बार उनको अपना जो पेट्रोल है वो फिल करना पड़ता है। तो क्या एम्बुलेंसेज या इसी से जुड़े जो मामलात हैं, क्या उनके लिए कोई रिलीफ होगा? वो जो कंपनियां चला रही हैं वो बंद नहीं कर रही हैं, तो कंपनियों को चाहिए सब वो अनाउंस कर दें कि ये हमारे पंप है, यहाँ से आप ले लें। यानी कि जो निजी कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उनकी सर्विस जारी रहेगी। टोटल है, वो है या कोई और कंपनी है जी, वो अपने पंप बंद नहीं करेगी जी। पीएसओ मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। पीएसओ के अपने पंप को अगर चला रही है जी खुला होगा। जी। बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं, बहुत सारे मामलात हैं पीएसओ के भी जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं, तो वो बंद रहेंगे या खुले रहेंगे खान साहब? देखिए,
दो चीजें हैं, एक तो डीलर पीएसओ का, जी एक कंपनी खुद चलाती है, जो खुद चलाती है वो बंद नहीं करेगी। भाई दो है और तो कुछ नहीं। जी अच्छा, खान साहब ये बताइएगा कि अगर 6 घंटे के लिए भी पेट्रोल पंप बंद होते हैं तो आपको पता है कि सूरत हाल क्या बन जाती है। फिर 24 से अगर 48-36 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो सकता है शहर कायद में। मुहर्रम उल हराम भी आ रहा है। देखिए मैं बार बार कहा है कि अपने टैंक फुल करा लें, और हम रात को बंद कर रहे थे, उनकी सहूलत के लिए कल सुबह से 6 बजे तक हमने रियायत दे दी है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि आशारिया 50% टैक्स जो है वो आयद किया जा रहा है, इनकम टैक्स आयद किया जा रहा है तो पेट्रोलियम मसनूआत पर। जी हाँ जी, ये बताइएगा कि जो इनकम टैक्स आयद किया जा रहा है वो इनकम पर टैक्स आयद किया जा रहा है या पेट्रोल की कीमत को मजीद बढ़ाने के लिए बात हो रही है? ये बढ़ा भी नहीं रहे और ये एक्स्ट्रा डीलर से ले रहे हैं। जी कमीशन बढ़ा देते, उसमें एडजस्ट कर देते तो कोई हमारा कोई मसला नहीं। जी अच्छा, ये बताइएगा कि किस हद तक जो इनकम टैक्स है, अभी तो खैर आशारिया 50% ही है, किस हद तक जो है वो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को काबिल कबूल होगा? देखिए बात ये, हमारा तो इनकम टैक्स पूरा कट जाता है, वो हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, इसके तकलीफ ये हो रही है कि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा खरीदने के लिए, ये काटते रहेंगे और पंप बंद हो जाएंगे जी। ना उनके पास कैपिटल रहेगा कि वो पेट्रोल ले सके। जी अच्छा, खान साहब ये भी बताइएगा, ये भी कहिएगा कि अभी आपने बताया कि निजी जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां वो खुली रहेंगी, तो क्या उनको भी एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है? निजी कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, हर कंपनी के अपने पंप को चला रही है जी, और वो बंद नहीं कर रही। तो हमें कोई असर नहीं। जी जी जी, हमने भी कहा अच्छा दे उनको, ताकि पब्लिक को इतनी तकलीफ नहीं हुई। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, क्या उनको एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है ताकि एक जाहिर है कि एहतजाज हमेशा प्रेशर बिल्ड करने के लिए होता है, तो एक बेहतर तरीके से बात रखी जा सकेगी हुकूमत के सामने? किसको एतमाद में ले? जो आपने कहा कि जो पंप्स खुले रहेंगे, कुछ कंपनियों के कुछ पंप्स खुले रहेंगे। नहीं, तय हो गया, वो तय हो गया। जी जी, वो तय हो गया। ठीक है, फिर टैक्स वापस लेने तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हुकूमत से टैक्स को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं वफाकी बजट में एडवांस टैक्स आशारिया 50% को मुस्तरद करते हैं। अब्दुल समी खान हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहरी हो जाएं खबरदार, पेट्रोल का बहरान आने को है तैयार। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं वफाकी बजट में एडवांस इनकम टैक्स आशारिया 50% को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से टैक्स को वापस लेने का मुतालबा भी किया है। अब्दुल समी खान बोले टैक्स वापस लेने तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हमारे नुमाइंदे राहिल बेग एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। शहरी वहां पर मौजूद हैं, शहरियों का क्या मौक़िफ़ है इस पर? राहिल, अप टू यू, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की अगर हम बात करें कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जो हुकूमत के साथ उनकी मुज़ाकरात है वो नाकाम हो चुके हैं और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनकी जानिब से 5 जुलाई की सुबह से तमाम पेट्रोल पंप
बंद रखने का अंदिया दे दिया गया है। और इस वक्त भी अगर आप मेरे अकब में देखें तो इस वक्त पेट्रोल पंप पे खासा रश नजर आ रहा है। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स का रुख किए हुए हैं। और पेट्रोलियम जो कीमतों में इजाफा किया गया है एडवांस टैक्स की मद में, उससे कहा जा रहा है कि इससे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की हड़ताल की जा रही है, कल से पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया गया, पेट्रोल ना होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात? सर हमारे को तो कोई मुश्किल नहीं हुई है अभी तक, हमारे पास है, चल रहा है, जब खत्म हो जाएगा गाड़ी खड़ी कर देंगे। वो तो कर देंगे, मगर अभी आप क्यों आए हैं? क्या पेट्रोल आपको पता चला कि कल से बंद? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ पेट्रोल खत्म हो रहा है या क्या है। बिल्कुल, कुछ लोगों को तो ये इल्म ही नहीं है, मगर बहुत सारे लोगों को पता है। अगर आप देखें तो मेरे चारों तरफ ही लोग यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतों में जो टैक्स लगाए गए हैं उसके पेश नज़र पेट्रोल पंप्स को बंद करने की कल हड़ताल की कॉल दी गई है, इससे क्या मुश्किलात होगी? अगर पेट्रोल नहीं होगा तो मुश्किलात क्या होंगी? सर जाहिर सी बात है मुश्किलात तो होंगी, जिस तरह से बिल्कुल जी मुश्किलात होंगी और हर कोई जल्दबाजी में है क्योंकि पेट्रोल भरवा रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइनें हैं। और चूँकि पेट्रोल की जो भी तरसील है उसको कल सुबह 6 बजे से यानी कि 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का अंदिया दिया गया है। मुल्क भर के तकरीबन 13,000 पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। और इस वक्त ये देखिए कि ना कि सिर्फ लोग पेट्रोल बाइक्स पर ले रहे हैं बल्कि लाइन्स में भी लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग लाइन में लगे हुए हैं तो इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, कल से पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं तो इससे आवाम में क्या मुश्किलात होगी? बहुत मुश्किलात होगी। क्या क्या मुश्किल होगी? चलें जी, लोग इंतजार में हैं और कुछ उन लोगों से बात करते हैं कि जिनका रोज रूटीन में डेली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, इतना रश है पेट्रोल पंप पे, कल से पेट्रोल पंप्स बंद होने जा रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो इसलिए लोग पेट्रोल ज़्यादा भरवा रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ कीमतों में कमी होगी? कीमतों में कमी होना तो बहुत दूर की बात है। हमारे मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ मुतसलसल जाता जा रहा है और इस सिलसिले में हम जब भी देखते हैं कि हर दफ़ा कीमत बढ़ती है तो हम लोग रश की तरफ जाते हैं और ज़्यादा फ्यूल की तरफ जाते हैं, ना कि उसको कम करें। ऐसा नहीं होता हमारी तरफ। अच्छा देखिए कि अभी जो मसला है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो टैक्स लगाया गया है एडवांस टैक्स, उसकी वजह से पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल दी जा रही है कि उस टैक्स को ख़त्म किया जाए। आप क्या समझते हैं, इजाफी टैक्स ख़त्म होने चाहिए? ऑल ओवर जो भी सैलरी पेशा और तमाम तबकात पे जो टैक्स बढ़े हैं ये तमाम ख़त्म होने चाहिए। लेकिन जैसा कि हम अपने मुल्क के हालात को, फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मसले ये आ रहे हैं कि हम हर सेक्टर पे टैक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, फाइनल रेशो नहीं बढ़ा रहे। बिल्कुल जी, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो कि पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं और जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है, जो खबर आती है, तो उसके बाद पेट्रोल पंप्स पर रश बढ़ जाता है, चाहे कीमतों में इजाफे की बात हो या उसके बाद पेट्रोल की हड़ताल की बात हो। तो इस वक्त भी यहाँ शहरी बड़ी तादाद में मौजूद है। उनका कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत नहीं होंगी, पेट्रोल नहीं होगा, तो यकीनी तौर पर अपने दिफातर, अपने काम काज पर जाने के लिए मुश्किलात का सामना होगा और मुश्किल से बचने के लिए लोग इस वक्त पेट्रोल भरवा रहे हैं और आवाम बड़ी तादाद में मौजूद है। और ये अंदिया दिया गया है कि 5 जुलाई से सुबह 6 बजे तक मुल्क भर के तकरीबन 13,000 पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे और ये तब तक बंद रहेंगे जब तक हुकूमत जो एडवांस टैक्स की मद में इजाफा किया गया है उसको अगर वापस नहीं लेती है, तो ये पेट्रोल पंप्स बंद रखने का फैसला किया गया है। जी, पेट्रोल पंप्स बंद रखने का फैसला किया गया है। शहरी खबरदार हो जाएं, पेट्रोल बहरान आ रहा है। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। हमारे नुमाइंदे राहील बेग हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। इसके अलावा अशरफ खान ने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। टाउन का 3 अरब 44 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का बजट मंजूर। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि सिंध हुकूमत से तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए फौरी 10 अरब रुपए ग्रांट फराहम करने का मुतालबा किया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
न्यू कराची टाउन का 3 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद मालियत का बजट मंजूर, टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर। बजट ब्रीफिंग के दौरान चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ बोले, आइंदा माली साल में पार्कों, डिस्पेंसरियों, खेल के मैदान और सड़कों की तामीर को बजट का हिस्सा बनाया गया है। न्यू कराची टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, जिसकी बहाली के लिए सिंध हुकूमत से 10 अरब रुपए की ग्रांट फराहम करने का मुतालबा करते हैं। इस वक्त हम चाहते हैं कि सड़कों की हालत ज़्यादा बेहतर करने के लिए और पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए टाउन को एक रकम दी जाए, ताकि हम इस निज़ाम को जो है वो ठीक कर लें। इस वक्त ज़ाहिर है कि जो हमारे नाले भी हैं, वो भी जो टाउन के नाले हैं या KMC के नाले, दोनों की हालत बहुत ख़राब है। और जब तक हमारे पास एक अच्छी ग्रांट नहीं आती कम से कम 10 अरब रुपए की, तो हम ना नालों की हालत बेहतर कर सकते हैं और नालों की हालत बेहतर किए बगैर सड़क जो है वो ठीक जो है वो नहीं रह सकती। इसलिए इस निज़ाम के लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे। अफसरान ने बजट 2024-25 की तफसीलात से आगाह किया। रेवेन्यू बजट हमारा टोटल जो है 3 अरब 4 करोड़ 41 लाख 84 हज़ार रुपये। इसमें नॉन डेवलपमेंट है 2 अरब 29 करोड़ 87 लाख रुपये और डेवलपमेंट है 74 करोड़ 52 लाख। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का निज़ाम जल्द अज जल्द टाउन हुकूमतों को मुंतकिल करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन राना जहांसेब के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज़ भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। एहतजाज में सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। आपको बताते चलें कि सहाफ़ी नसरुल्लाह की कातलों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज़ भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी सहाफ़ियों की जानिब से यह एहतजाज किया गया, आज भी एहतजाज किया जा रहा है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज़ भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। एहतजाज में सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज़ भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। एहतजाज में सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ भी ये एहतजाज किया जा रहा था और मुतालबा किया जाता रहा सहाफ़ी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए। आपको बताते चलें कि सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज़ भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। एहतजाज में सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ये एहतजाज जारी है। सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद इस एहतजाज में शरीक है। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम देख सकते हैं अहल खाना सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज़ भी एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सहाफ़ियों और वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है एहतजाज में और मुतालबा किया जा रहा है कि कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के एहतजाज किया जा रहा है, दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है ये एहतजाज में सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कहा जा रहा है बैनर्स भी उठा रखे हैं, प्लेकार्ड्स भी यहाँ पर शुरका ने उठा रखे हैं। एहतजाज के शुरका ने एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ पर आम शहरी भी हमें ख़वातीन ख़ास तौर पे नज़र आ रही हैं। अहले खाना सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के जिसको कत्ल कर दिया गया था, कातलों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे रोज़ भी एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में सहाफ़ियों और वकला की बड़ी तादाद मौजूद है और नारेबाजी भी इससे पहले की जाती रही और ये कहा जा रहा है कि सहाफ़ी के कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं और प्लेकार्ड्स पर नारे दर्ज हैं। बात करेंगे नुमान गुल से। नुमान, बताइएगा, एहतजाज जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के जो कत्ल हुआ और उसके बाद जो है उसके बाद सहाफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज है। प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त जो है वो एहतजाजी मुजाहिरीन इस वक्त मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन जानशेर बलोच आपको
دکھا سکیں. تو اس وقت بھی جو مظاہرین ہیں وہ اس وقت یہاں پر پریس کلب کے باہر موجود ہیں، جو کہ نصر اللہ گڈانی کے جو ہے وہ ان کے قتل کے حوالے سے جو ہے وہ نکلے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ یہ احتجاج جاری ہے، جبکہ بہت دیر سے مظاہرین یہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے، جو کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. جی بہت شکریہ نعمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شعبہ کمپیوٹر سائنس جامعہ کراچی کے تحت ماحولیاتی تبدیلی پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. ایم ایم پی کے مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئر وسیم نذیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سید زبیر راشد سے مزید جانیں گے، بتائیے گا. ہاں جی بالکل، دیکھیے اس وقت میں موجود ہوں جامعہ کراچی میں، اور جامعہ کراچی کے شعبہ UBIT کی زیر اہتمام ماحولیاتی آلودگی اور تبدیلیوں سے متعلق ایک سیمینار جو ہے منعقد کیا گیا ہے. شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے جو ہے سیمینار کی کانفرنس کی جو صدارت کی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آج کے سیمینار کے حوالے سے؟ جی بنیادی طور پہ جو سیمینار تھا وہ انرجی سیکٹر کے حوالے سے تھا، اور کلائمیٹ چینج جو کہ افیکٹ کر رہی ہے، اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں میرے خیال سے پچھلے 15 دن میں زیادہ احساس ہوا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج کے اندر کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہم وہ انرجی استعمال کریں جس کو ہم کہتے ہیں ایکولوجیکل فرینڈلی ہو، جس کے اندر ونڈ انرجی کے اوپر بات کی جاتی ہے، ہائیڈرو انرجی کے اوپر بات کی جاتی ہے. تو ایسے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جس کے ذریعے ہم انرجی کو استعمال کر کے اپنے ماحول کو بہتر کر سکتے. جو کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، فلڈ ہے، ڈراؤٹ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس ایونٹ کے ذریعے بچوں میں آگاہی پیدا کرنا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بات کرتے ہیں تو صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے. جو ہیومن برین ہے، جو انوویشن اینڈ کریٹیو آئیڈیاز ہے، اس کے ذریعے ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، اور جو سسٹینیبل گولز ہیں، خاص طور پہ 13 اور 15 سسٹینیبل گولز ہیں، اس کو اچیو کر سکیں. پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. جیسے کہ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں وہ بہت ہی ناگزیر ہیں، اور طلباء و طالبات کو اس کانفرنس کے ذریعے جو ہے معلومات اور آگاہی جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. جی گورنر سندھ نے 1 تا 10 محرم کے الیکٹرک کو امام بارگاہوں اور ملحقہ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا حکم دیا ہے. کامران چفسوری کہتے ہیں کہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوئی تو میں خود احتجاجاً کہ الیکٹرک ہیڈ آفس جا کر بیٹھ جاؤں گا. گورنرشپ سے متعلق سوال پر بولے شجیل میمن سے پوچھا جائے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں کہ وہ خود بھی مجھے گورنر عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں، جسے میرا گورنر کے عہدے پر رہنا پسند نہیں ہے. اہل سیاست جانے اور وہ جانے. خورشید رحمانی کی رپورٹ. گورنر ہاؤس میں محرم الحرام سے متعلق اجلاس، علماء کرام، جلوس اور مجالس کے منتظمین اور ذاکرین نے کے الیکٹرک کے خلاف شکایت کے انبار لگا دیے. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی زیر صدارت اجلاس میں شیعہ علماء کونسل، اسکاؤٹس، اکابرین، تاجر سمیت تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. اجلاس میں گورنر سندھ نے تمام کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کرائی. ان تمام کی تمام جو گزارشات آپ نے رکھی ہیں اس پر منومن عمل کروانے کے لیے آج ہی سے گورنر ہاؤس اپنا کردار ادا کرے گا. ایک سیل جو ہے گورنر ہاؤس میں اس کا فوری قیام کیا جائے، جو پورے 1 محرم سے 10 محرم تک 24 گھنٹے کام کرے گا. کے الیکٹرک کو مخاطب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے خبردار کیا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوئی تو میں خود احتجاجاً کے الیکٹرک ہیڈ آفس جا کر بیٹھ جاؤں گا. 1 محرم سے 10 محرم تک کہ الیکٹرک کوئی لوڈ شیڈنگ جہاں جہاں ایریاز آپ نے انہیں دیے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں خود کے دفتر جا کے بیٹھ جاؤں گا. گورنرشپ سے متعلق سوال پر کامران ٹسوری کا کہنا تھا کہ میرا کام خدمت کرنا ہے، سیاست کرنا نہیں. شرجیل میمن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں کیا وہ خود بھی مجھے گورنر کے عہدے پر دیکھنا نہیں چاہتے؟ کہ اہل سیاست جانے اور وہ جانے. میرا کام خدمت ہے، میں خدمت کرتا رہوں گا.
वैसे लाइटर मूड में आपसे कह रहा हूँ, ज़रा शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि जब तक हम माशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक मसाइल से नहीं निकल सकते। आज हमारा मसला एक दूसरे का दस्ते गिरबा रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम व मजबूत बनाना चाहते हैं। कैमरामैन हारिस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।